کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو نعمتیں ہیں وہ کیوں بڑھتی یا کم ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کا رزق دن بدن بڑھتا جاتا ہے اور کچھ لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا راز ہے جس سے برکت بھی آئے، دولت بھی اور سکون بھی؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 11 اہم باتیں جو اللہ کی نعمتوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا فارمولا ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس میں چھپا ہے ایک انمول سبق جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل الفرقان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک سردیوں کی رات تھی۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ کے گھر کی دیوار میں سیند لگائے۔ دھیرے دھیرے اندر گھسا۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی الماری تھی جس پر بس 1.5 آنے کا ایک چھوٹا سا تالا لگا تھا۔ اس گھر میں لوگوں کی امانتیں رکھی جاتی تھیں اور بہت مال پڑا تھا۔ چور نے سوچا کہ یہ تالا توڑنا تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اس گھر کے مالک، جو ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے، جاگ چکے تھے۔ انہوں نے رجائی سے جھانک کر دیکھا اور چور کو سمجھ گئے۔ پھر بڑی سادگی اور اطمینان سے بولے، بھائی، میں نے اپنے سارے مال کی زکوٰۃ دے دی ہے، جو تیرا نصیب ہو وہ لے جا۔ مگر چور نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اس نے تالے کو توڑنے کی کوشش جاری رکھی۔ صبح ہو گئی لیکن تالا نہیں ٹوٹا۔ اوپر سے ہلکے ہلکے تالے لگے تھے، مگر پھر بھی وہ تالا ایسا مضبوط ثابت ہوا کہ پوری رات کی محنت کے باوجود ٹوٹ نہ سکا۔ صبح ہوتے ہی چور نے مالک کے قدموں میں گر کر کہا، مجھے اس تالے کا راز بتا دو۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، جو مال پاک صاف ہو، جس کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ انگریز کے بنگلے کا واقعہ۔ دلی میں انگریزوں کے بڑے بڑے بنگلے تھے۔ ایک دن کسی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ تیز ہوا کے کارن آگ اور پھیلتی گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی علاقے میں ایک انگریز کا بھی عالیشان بنگلہ تھا۔ اس کا ایک مسلمان نوکر دوڑتا ہوا آیا اور گھبرا کر بولا، صاحب جی، آگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، کچھ کیجیے۔ انگریز اپنے کاموں میں ویست تھا، اس نے پرواہ نہ کی۔ نوکر پھر بھاگ کر آیا، صاحب جی، آگ اب آپ کے بنگلے کے بہت قریب آ گئی ہے۔ لیکن انگریز نے صرف اتنا کہا، گھبراؤ مت، میں نے اپنے پورے مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، میرا مال اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جب آگ کا رخ دیکھا گیا تو عجیب نظارہ تھا۔ آگ ہر طرف پھیلی تھی، لیکن اس انگریز کے بنگلے کے پاس آتے ہی جیسے بجھ گئی ہو۔ آگ نے اس کا گھر چھوا تک نہیں۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ راستے میں ایک غریب آدمی ملا، وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، میری غریبی دور کرنے کی دعا کر دیں۔ اللہ سے کہیے کہ میرے لیے برکت اور وسعت کے فیصلے کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ اللہ سے اس کے لیے دعا کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے اس آدمی کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، اس سے کہو کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ جب واپس آئے تو اس آدمی سے بولے، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لیکن وہ آدمی مایوس ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جس کا شکر ادا کروں؟ اچانک ہوا چلی اور اس کے سر پر رکھا ریت کا ڈھیر بھی اڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ مال کی کمی کی دعا کرنے والا ایک اور آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، مگر یہ آدمی الگ تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں تھک گیا ہوں اسے سنبھالتے سنبھالتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ میرا مال کم ہو جائے۔
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने रिज़्क़ की ज़कात देना शुरू कर दो, देखना तुम्हारा रिज़्क़ कम हो जाएगा। वो आदमी चला गया। कुछ समय बाद वापस आया और रोता हुआ कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरा रिज़्क़ कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया है। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, यही अल्लाह का निज़ाम है, जो ज़कात देता है उसके माल में कभी कमी नहीं आती, बल्कि बरकत और बढ़ जाती है। जो अपने माल की ज़कात अदा करता है उसका माल महफूज रहता है। अल्लाह ने जिन नेमतों से नवाजा है उनका शुक्र अदा करना चाहिए, वरना नेमतें छिन भी सकती हैं। ज़कात देने से कभी भी रिज़्क़ कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। नेकी और पाकीज़गी में जो ताकत है वो किसी और चीज़ में नहीं। इंग्लैंड से एक साहब आए। वो बड़े ही परेशान थे। उन्होंने कहा, कोई ऐसी दुआ है जिससे मेरा माल खत्म न हो, बस थोड़ा थम जाए। मैंने कहा, ज़रा अपने अल्फाज पर गौर करो। तुम खत्म नहीं चाहते, मगर थम भी नहीं चाहते। ये कैसी बात हुई? वो कहने लगे, हमारे पास एक मशीन है, उसमें छोटे बड़े पाउंड डालते हैं, फिर वो नोटों के बंडल बनाकर हमें दे देती है। हाथों से गिनने का झंझट खत्म हो गया, लेकिन अब हाल ये है कि गिनते गिनते थक गया हूँ, कभी ये खत्म नहीं होता। मैंने कहा, क्या तुम जानते हो बरकत कैसे आती है? खाने में बरकत का राज। फिर उन्होंने एक और बात पूछी, क्या कोई तरीका है जिससे माल और बढ़ जाए? मैंने कहा, तुमने कभी सफ़र करने वालों को देखा है? पुराने ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे तो ऊँट पर बैठकर खाना खाते थे, लेकिन खाने के दौरान उनके रुमाल में छोटे छोटे ज़र्रे गिर जाते थे। फिर जब सफ़र खत्म होता वो उन ज़र्रों को उठाकर उन जगहों पर डालते जहाँ चींटियाँ या छोटे जानवर रहते थे, ताकि वो भी कुछ खा सकें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिज़्क़ बढ़े तो खाने में थोड़ा सा हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ दिया करो। ये सुनकर वो बोले, क्या ये सच में असर करता है? मैंने जवाब दिया, यकीन न आए तो आज़मा कर देख लो। जब भी सफ़र में जाओ, जब भी खाना खाओ, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दो, जानवरों को भी खिलाओ। देखना तुम्हारा रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं होगा, दौलत पीछा करेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया। उसने कहा, ए मूसा, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी दौलत कुछ कम हो जाए। गिनते गिनते थक जाता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने रिज़्क़ की ज़कात देना शुरू कर दो, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा माल कम हो जाएगा। कुछ वक्त बाद वो आदमी फिर आया और कहने लगा, ए मूसा, मेरी दौलत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, जो अल्लाह के नाम पर देता है उसका माल कभी कम नहीं होता, बरकत उसके पीछे पीछे दौड़ती है। अनारों का बाग और दुआ। एक आदमी का अनारों का बहुत बड़ा बाग था। उसके हर अनार में इतने ज़्यादा दाने होते थे कि एक अनार से पूरी टोकरी भर जाती थी। वो आदमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हे अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसी दुआ है जिससे मेरे बाग में फल कम हो जाए? मैं संभाल नहीं पाता। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बाग में इतनी बरकत क्यों है? जब तुम फल तोड़ते हो तो कुछ हिस्सा चींटियों, परिंदों और जानवरों के लिए छोड़ देते हो। यही वजह है कि तुम्हारा बाग हर साल और ज़्यादा फल देता है। बरकत वहीं होती है जहाँ ज़कात, खैरात और दूसरों के लिए नेक नियति होती है। जो रिज़्क़ को अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका रिज़्क़ कभी कम नहीं होता। जो खाने में से थोड़ा हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ता है उसके घर में हमेशा बरकत रहती है।
जो दूसरों की मदद करता है, दौलत खुद उसके पीछे भागती है। अगर ये बातें आपके दिल को लगीं, तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। अल्लाह हमें बरकत वाला रिज़्क़ अता करे। आमीन। एक दिन एक आदमी अनार खा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की नेमतों को ज़ाया न करो। वो आदमी हंस पड़ा और मजाक में अनार का एक दाना ज़मीन पर गिरा दिया। लेकिन देखो अल्लाह की कुदरत। जैसे ही दाना ज़मीन पर गिरा, वो चमकदार लाल जवाहर रत्न में बदल गया। अब सोचो, क्या हम वाकई गरीब हैं? क्या हम सहाबा और अहले बैत से ज़्यादा गरीब हैं? क्या औलिया और सुलह से ज़्यादा गरीब हैं? हमारी बेकदरी, हमारी बदहाली। कभी अबू हुरैरा राज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़क़्र और भूख की वजह से दौरे पड़ते थे। क्या हमें कभी भूख के ऐसे दौरे पड़े हैं? आज हमारे घर, गली और बाजार दौलत से भर चुके हैं, लेकिन हमारी बरकत चली गई है। नेमतें बेशुमार हैं, लेकिन बेकदरी भी उतनी ही ज़्यादा है। कूड़े के ढेर में महंगे जूते, नए कपड़े और ऊंचे दर्जे की चीज़ें फेंकी जा रही हैं। हमारे पास दौलत तो है, लेकिन सुकून नहीं। क्यों? क्योंकि हमने नेमतों की कद्र करना छोड़ दिया है। इसी वजह से अल्लाह ने हमसे बरकत, राहत और सुकून छीन लिया। महंगाई का असली कारण आज हम हुक्मरानों को कोसते हैं। कहते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी, हमारा हुकूमत करने वाला खराब है। लेकिन सच ये है कि कोई बादशाह नहीं चाहता कि महंगाई हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर महंगाई बढ़ी तो उसका तख्त हिल जाएगा। असल में हमारे आमाल ही हमारी हालत तय करते हैं। हर दिन फरिश्ता ऐलान करता है, इस चीज़ को महंगा कर दिया गया, इस चीज़ को सस्ता कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर कंकर फेंके, तो बदले में कंकर ही आए। अगर फूल फेंकते तो फूल ही मिलते। आमालकुम उमालकुम, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारा हुक्मरान होगा। आमालकुम अहवालकुम, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारा हाल होगा। इसलिए हुक्मरानों को कोसने के बजाय अपने आमाल को सुधारो, अपने वक्त को खुद को बदलने में लगाओ। शुक्र से जिंदगी बदलती है। एक दिन एक बुजुर्ग मेरे पास आए। वो कहते थे, पाकिस्तान में लोग ज़्यादा जीते हैं इंडिया के मुकाबले। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ नेमतें ज़्यादा हैं और शुक्र भी ज़्यादा है। अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी में बरकत हो, तो नेमतों की कद्र करो, शुक्र करो, अल्लाह और ज़्यादा देगा। 11 बरकत वाले पैकेज। 1. खाने को ज़ाया मत करो। 2. गरीबों को खिलाओ। 3. ज़कात और सदका दो। 4. जानवरों के लिए कुछ हिस्सा छोड़ो। 5. अल्लाह की दी हुई चीज़ों का एहसान मानो। 6. मेहनत से कमाओ, हलाल रोज़ी लो। 7. दूसरों की मदद करो। 8. हर हाल में शुक्र अदा करो। 9. नेक आमाल करो, बुराइयों से बचो। 10. कर्ज से बचो, सादगी से जियो। 11. और सबसे अहम, अल्लाह पर भरोसा रखो। बरकत वहाँ होती है जहाँ शुक्र होता है। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, चाचा, आज मटकी कितनी बिकी? मैंने जवाब दिया, लाख थी, लाख थे। मैं सोचने लगा, लाख उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। आज का लाख शायद अरब के बराबर हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ पैसे का नहीं, सोच का है। कोई इंसान नेमतों की कदर करता है और अल्लाह उसकी दौलत बढ़ाता है, और कोई इंसान सारी ज़िंदगी शिकवा करता रहता है, अल्लाह उसे और भी ज़्यादा तंगहाली में डाल देता है। शुक्र करो, नेमतें बढ़ेंगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं, नाशुक्री करने से नेमतें छिन जाती हैं। अगर हमें अपनी नेमतों की कद्र करनी है
तो पहले हमें उन्हें देखना और महसूस करना होगा। नेमतों की कद्र समझने का आसान तरीका। मैं एक दिन इमरजेंसी वार्ड में गया। देखा, लोग खून में लथपथ आए जा रहे हैं। किसी के जिस्म पर जख्म है, किसी का गोश्त लटक रहा है। तब एहसास हुआ, या अल्लाह, तूने मुझे कितनी नेमतें दी हैं। क्या हमारे हाथ सलामत नहीं? क्या हमारे पैर सलामत नहीं? क्या हमारी आँखें, दिल और जिस्म की हर हड्डी सही सलामत नहीं? अगर हम वाकई अल्लाह की नेमतों की कद्र करना चाहते हैं, तो बस उन लोगों को देखो जिनके पास ये नहीं है। नेमतें बढ़ाने का फॉर्मूला 1। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर वक्त, हर हाल में। अल्लाह की दी हुई हर चीज़ पर शुक्र अदा करो। 2. अपनी नेमतों को देखो और पहचानो। गाड़ी में बैठे हो, शुक्र करो। घर में सुकून है, शुक्र करो। तंदुरुस्ती है, शुक्र करो। 3. दूसरों की मदद करो, सदका दो। गरीबों को खिलाओ, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो। 4. अल्लाह के दी हुई चीज़ों को जाया मत करो। खाने को बर्बाद मत करो, पानी को फिजूल मत बहाओ। 5. नाशुक्री से बचो, गालियाँ मत दो, शिकवे मत करो। हर चीज़ में शिकायत मत निकालो। अगर हम सिर्फ इतना कर लें, तो अल्लाह हमारी नेमतों में बेहिसाब इजाफा करेगा। अगर ये बातें दिल को लगीं, तो दूसरों तक भी पहुँचाओ। अल्लाह हमें और आपको बरकत वाला रिज़्क़ अता करे, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी नेमतों को बढ़ा दे, तो आज ही शुक्र करना अपनी आदत बना लें। हर छोटी से छोटी चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। खाने को फिजूल ना करें, पानी की कद्र करें, दूसरों की मदद करें और अपनी दौलत को सदका देकर पाक करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों और घरवालों तक ज़रूर पहुंचाएं। क्योंकि किसी एक की ज़िंदगी बदल जाए, तो हमें भी इसका सवाब मिलेगा। अल फुरकान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी और भी काम की बातें मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।